عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ آج کی اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز طلباء طالبات، 12ویں جماعت علم معاشیات کا دوسرا سبق تجزیہ افادہ یا افادے کا تجزیہ۔ اس سبق میں ہم معنی و مفہوم، اس کے علاوہ افادے کی خصوصیات، افادے کی قسمیں وغیرہ کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر افادے، کل افادہ اور حاشیائی افادے کے درمیان تعلق کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سوال اس طرح سے پوچھا جاتا ہے کہ کل افادہ اور حاشیائی افادے کے درمیان تعلق کی وضاحت کیجیے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کل افادہ اور حاشیائی افادے کے درمیان تعلق۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ کل افادے کو ہم ڈیفائن کر چکے ہیں، کل افادہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی شے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کے مجموعے کو کل افادہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک صارف شے کی 6 اکائیاں استعمال کرتا ہے تو ان 6 اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کے مجموعے کو ہم کل افادہ کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر شدت کی پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی پینے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، 4 اکائیاں ایک صارف استعمال کرتا ہے پانی کے گلاس کی، تو ان چاروں اکائیوں سے، پانی کے گلاس کی چاروں اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کا مجموعہ جو ہوگا وہ کل افادہ ہوگا۔ تو سمپلی ہم اس کو اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ کل افادہ صارف کے ذریعے استعمال کی گئی شے کی تمام اکائیوں سے حاصل ہونے والے افادے کا مجموعہ کل افادہ کہلاتا ہے۔ کل افادہ مجموعے سے منسوب ہے۔ دوسرا جو ہے حاشیائی افادہ، جس کو ہم مارجنل یوٹیلیٹی کہتے ہیں، شے کی زائد اکائی کے استعمال سے صارف کے ذریعے حاصل کیا جانے والا افادہ حاشیائی افادہ کہلاتا ہے، مارجنل یوٹیلیٹی کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں عزیز طلباء و طالبات، آسان لفظوں میں ہم اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ شے کی آخری اکائی سے حاصل ہونے والا افادہ حاشیائی افادہ کہلاتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، حاشیائی افادہ اور کل افادے کے درمیان تعلق ہم جدول کے ذریعے اور ڈائیگرام کے ذریعے واضح کر سکتے ہیں۔ درج ذیل جدول اور ڈائیگرام کی مدد سے کل افادہ اور حاشیائی افادے کے درمیان تعلق کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ پہلا جو ہمارا کالم ہے، شے کی اکائیوں کو ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرے کالم کے اندر حاشیائی افادہ یعنی مارجنل یوٹیلیٹی کو ظاہر کیا گیا ہے، اور ہمارا تیسرا کالم جو ہے اس میں کل افادہ ٹوٹل یوٹیلیٹی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ جدول میں صارف شے کی کل 6 اکائیاں استعمال کرتا ہے۔ پہلی اکائی سے اس کو حاشیائی افادہ جو حاصل ہوتا ہے وہ 6 ہوتا ہے، اور کل افادہ بھی یہاں پر 6 ہوتا ہے۔ جب صارف دوسری اکائی استعمال کرتا ہے تو اس کا حاشیائی افادہ 6 سے کم ہو کر 4 ہو جاتا ہے، جبکہ کل افادہ 6 سے بڑھ کر 10 ہو جاتا ہے۔ تیسری اکائی پر حاشیائی افادہ 2 اور کل افادہ 12، چوتھی اکائی پر حاشیائی افادہ 0 ہو جاتا ہے اور کل افادہ 12 ہوتا ہے۔ پانچویں اکائی پر حاشیائی افادہ 0 سے کم ہو کر -2 ہو جاتا ہے، جبکہ کل افادہ 12 سے کم ہو کر 10 ہو جاتا ہے۔ چھٹی اکائی پر حاشیائی افادہ جو ہے -4 ہو جاتا ہے، جبکہ کل افادہ 10 سے کم ہو کر 4 ہو جاتا ہے۔ تو جدول کو ہم اس طرح سے واضح کر سکتے ہیں سمپلی عزیز طلباء و طالبات۔ جدول کی وضاحت: صارف شے کی کل 6 اکائیاں استعمال کرتا ہے۔ پہلی اکائی کے استعمال پر اس کا حاشیائی افادہ 6 ہوتا ہے، جبکہ کل افادہ بھی 6 ہوتا ہے۔ یعنی عزیز طلباء و طالبات، جب صارف پہلی اکائی استعمال کرتا ہے تو اس کی
कुल अफादा और हाशियाई अफादा दोनों बराबर होता है, जितना वो हाशियाई अफादा होता है उतना ही कुल अफादा होता है। तो इसलिए इसको इस तरह से भी टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, जब फर्स्ट यूनिट सारिफ जो है कंज्यूम करता है या सारिफ जो है पहली इकाई का इस्तेमाल करता है। अब सारिफ पहली इकाई के बाद दूसरी इकाई इस्तेमाल करता है। जब सारिफ दूसरी इकाई इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा 6 से कम होकर 4 हो जाता है। 6 से कम होकर 4 होना, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं इससे पहले कि हाशियाई अफादा तो जो है बतदरीज घटते जाता है, क्योंकि अफादे का इन्हिसार ख्वाहिश की शिद्दत पर होता है। जैसे जैसे सारिफ शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा घटते जाता है। तो यहाँ पर दूसरी इकाई के इस्तेमाल से सारिफ का हाशियाई अफादा 6 से कम होकर 4 हो जाता है, जबकि कुल अफादा जो होता है 6 से बढ़कर 10 हो जाता है। डियर स्टूडेंट, तीसरी इकाई सारिफ इस्तेमाल करता है। तीसरी इकाई जब सारिफ इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा 4 से कम होकर 2 हो जाता है, जबकि कुल अफादा 10 से बढ़कर 12 हो जाता है। चौथी इकाई सारिफ जब इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा 2 से कम होकर 0 हो जाता है, जबकि कुल अफादा 12 होता है। तो अजीज़ तुलबा तालबात, इस तरह से जैसे जैसे सारिफ पहली इकाई इस्तेमाल करता है 6 हाशियाई अफादा होता है, दूसरी इकाई पर 4 हो जाता है, तीसरी इकाई पर 2 हो जाता है और चौथी इकाई पर 0 हो जाता है। 0 हो जाता है तो इससे ये जाहिर होता है कि जैसे जैसे सारिफ शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटता है, यानी दर्जा बदर्जा घटता है। अजीज़ तुलबा तलबत, जैसे दर्जा बदर्जा से मुराद जैसे 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, इन तमाम के दरमियान 2 का फ़र्क है, यानी दर्जा बदर्जा घटता है, बतदरीज घटता है, इसको कहा जाता है। तो अजीज़ तुलबा तलबात, 2 से कम होकर उसका हाशियाई अफादा 0 हो जाता है चौथी इकाई पर। जब चौथी इकाई पर उसका हाशियाई अफादा 0 हो जाता है तो 0 जिस मकाम पर सारिफ का हाशियाई अफादा 0 हो जाता है उस मकाम पर सारिफ की ख्वाहिश की तकमील हो जाती है, मज़ीद ख्वाहिश बाकी नहीं रहती, इसलिए उस मकाम पर उसका हाशियाई अफादा 0 हो जाता है। जैसे अज़ीज़ तुलबा तलबात, आप खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त आप खाना खाते खाते एक वक्त ऐसा आता है कि आप मज़ीद खाने से इनकार कर देते हो। तो अज़ीज़ तुलबा तलबात, उस वक्त आपकी ख्वाहिश की तकमील हो जाती है, यानी उस वक्त आपका हाशियाई अफादा 0 पर पहुंच जाता है। तो चौथी इकाई पर यहाँ पर सारिफ का हाशियाई अफादा 2 से कम होकर 0 हो जाता है, जबकि कुल अफादा जो है 12 होता है। जिस मकाम पर हाशियाई अफादा 0 होता है उस मकाम पर कुल अफादा अपनी इंतहा पर होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, उरूज पर होता है। पाँचवीं इकाई सारिफ जब इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा 0 से कम होकर -2 हो जाता है, यानी मनफी हो जाता है, जबकि कुल अफादा जो है 12 से कम होकर 10 हो जाता है, यानी कुल अफादा यहाँ से घटना शुरू होता है। छठी इकाई सारिफ जब इस्तेमाल करता है तो उसका हाशियाई अफादा -2 से कम होकर -4 हो जाता है, जबकि कुल अफादा 10 से घटकर 6 हो जाता है। तो अजीज़ तुलबा तालबात, इससे ये जाहिर होता है कि सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटता है और कुल अफादा जो है बतदरीज बढ़ता है। लेकिन घटते घटते एक मकाम ऐसा आता है कि हाशियाई अफादा 0 हो जाता है। जिस मकाम पर हाशियाई अफादा 0 होता है उस मकाम पर कुल अफादा अपनी इंतहा पर होता है, यानी उरूज पर होता है। 0 के बाद मज़ीद इकाई जब सारिफ इस्तेमाल करता है तो हाशियाई अफादा मनफी हो जाता है, और जब हाशियाई अफादा मनफी होता है तो कुल अफादा जो है 0 के बाद घटना शुरू हो जाता है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है जदोल से। अब जदोल की मदद से हम डायग्राम भी बना सकते हैं। डायग्राम
को भी वाज़ेह कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि जो डायग्राम दिया गया है यहाँ पर, इस डायग्राम में ओ वाई एक्सिस पर कुल अफादा और हाशियाई अफादे को ज़ाहिर किया गया है। ओ एक्स एक्सिस पर शय की इकाइयों को ज़ाहिर किया गया है और यहाँ पर जिस मकाम पर हाशियाई अफादा सिफर होता है उस मकाम को मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता कहते हैं। ये जो है एम यू कर्व जो है ये हाशियाई अफादे का ख़त है। टोटल यूटिलिटी कर्व जो है ये कुल अफादे का ख़त है। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पर जिस मकाम पर सारिफ का हाशियाई अफादा जैसे चौथी इकाई के इस्तेमाल पर सारिफ का हाशियाई अफादा सिफर हो जाता है, तो इस मकाम को मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता या नुक्ता सैराबी कहते हैं। तो इस तरह से डायग्राम के ज़रिए भी हम मुआज़े कर सकते हैं। अब डायग्राम के ज़रिए भी हम मुआज़े कर सकते हैं। दर्जबाला डायग्राम में ओ वाई महवर पर कुल अफादा और हाशियाई अफादे को ज़ाहिर किया गया है। ओ एक्स महवर पर शय की इकाइयों को ज़ाहिर किया गया है। शक्ल में जिस मकाम पर हाशियाई अफादा सिफर होता है उसे मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता या नुक्ता सैराबी कहते हैं। शक्ल के ज़रिए ये बात वाज़ेह होती है कि पहला पॉइंट हमारा सारिफ जैसे जैसे शय की इकाइयाँ इस्तेमाल करता है वैसे वैसे उसका हाशियाई अफादा बतदरीज घटता है, जबकि कुल अफादा बढ़ते जाता है। दूसरा नुक्ता हम यहाँ वाज़ेह कर सकते हैं कि हाशियाई अफादा घटते घटते एक मकाम पर सिफर हो जाता है। उस मकाम पर सारिफ की ख्वाहिश की तकमील हो जाती है। उस मकाम को नुक्ता तशफ़ी या नुक्ता सैराबी या मुकम्मल तशफ़ी का नुक्ता कहते हैं। तीसरा जो नतीजा हम अख़ज़ करते हैं, जिस मकाम पर हाशियाई अफादा सिफर होता है उस मकाम पर कुल अफादा जो है अपनी इंतहा को होता है। जैसे हमारे डायग्राम और जदोल में जिस मकाम पर हाशियाई अफादा सिफर है उस मकाम पर कुल अफादा जो है 12 है। लेकिन 12 के बाद 12 के बाद हाशियाई अफादा घटना शुरू होता है, यानी कुल अफादा घटना शुरू होता है, यानी कुल अफादा जो है उस मकाम पर अपनी इंतहा पर होता है, अपने उरूज पर होता है या सबसे ज़्यादा होता है। चौथा नतीजा हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि सिफर के बाद हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है। जैसे हम देखते हैं हमारे जदौल और डायग्राम में कि 2 के बाद हाशियाई अफादा सिफर हो जाता है और सिफर के बाद -2 हो जाता है, -4 हो जाता है। मज़ीद इकाई जब सारिफ इस्तेमाल करता है -2 के बाद तो -4 भी हो जाता है, यानी सिफर के बाद हाशियाई अफादा जो है मनफी हो जाता है, जबकि कुल अफादा जो है घटना शुरू होता है। तो इस तरह से हम वजाहत कर सकते हैं कि कुल अफादा और हाशियाई अफादे के दरमियान जो ताल्लुक़ है, तो सिंपली इस तरह से हम इसकी वजाहत कर सकते हैं।